Okay, so 138. Tritiyam Mrishi Sargam Vai Devarishi Tvamupetisa Tatram Satvam Achashta Neshkarmayam Karmanayataha. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? In the millennium of the rishis, the personality of God had accepted the third empowered incarnation in the form of Devarishi Narad, who is a great sage among the demigods. He collected expositions of the Vedas which deal with devotional service and which inspire non-fruitive action. So this is a very 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 critical वर्स. ये हमारे ना इस हमारी स्टडी में इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वर्सेस, क्योंकि इसमें क्या बताया? वी आर टॉकिंग अबाउट नारद मुनि. नारद मुनि, you will see in every single canto and nearly every chapter there is a mention of Narad Muni, क्योंकि Narad Muni has actually helped out. Narad Muni, just give me 1 second. Folks, show me. Okay, that's okay. So नारद मुनि क्या है? इतने एक ऐसे हीरो है नारद मुनि जो हर श्रीमद् भागवतम की मूवी में है, एंड ही इज द मेन कैरेक्टर इन एवरी मूवी एक्चुअली. क्योंकि यू नो इट इज ग्रेट, इट इज अ ग्रेट फीट टू डू ग्रेट वर्क, है ना? इट्स अमेजिंग, बट इट इज इवन ग्रेटर फीट टू इंस्पायर दोज पीपल हु कैन डू ग्रेट फीट, है ना? ना रामायण में भी हम लोग पढ़ते हैं जामवंत, है ना? जामवंत के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, है ना, वो जो पूरा उनका श्रीलंका मिशन था बजरंगबली का, वो किस लिए पूरा हुआ? बिकॉज जामवंत ने उनको इंस्पायर करा. ही इज द वन हु मेड हनुमान रियलाइज व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, एंड देन ही इंस्पायर उनको ना पूरा. ही फिल्ड हिम अप विद ऑल दिस कॉन्फिडेंस, एंड जिसके कारण हनुमान जी वाज एबल टू फ्लाई, है ना? ही वुड, मतलब यार सोचो, इट्स द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप एवर, है ना? इंडिया से श्रीलंका जंप करना. ही डिड दैट only because there was Jamwant who inspired him, who actually Jamwant का क्या काम था? He made him realize what he forgotten, है ना? Now who wants to tell me हमारा what is the स्वरूप, हमारा जो हम जीव तत्व है, what is our स्वरूप? प्रभु कृष्ण नित्य दास जीवेरे स्वरूप है नित्य, कृष्ण रे नित्य दास, है ना? अब ये बात हम लोगों को पता है, हम लोग हमेशा से नित्य दास हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ये. एंड कौन हमें बताता है आके? द पर्सन हु कैन टेल अस हु वी रियली आर, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, व्हाट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, बिकॉज वी आर कृष्ण के नित्य दास हैं. दिस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. और जो भी हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन देगा, इंस्पायर करेगा, ही इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ आवर लाइफ्स, है ना? सो नारद मुनि, like Jamwant, is the biggest hero because what he's doing is he's instilling bhakti. वो सब में भक्ति इंस्टिल कर रहे हैं, हर एक के दिल में. एक्चुअली भक्ति हर किसी के दिल में ऑलरेडी है. what he is doing, he is inspiring people to uncover and realize who you are really, and that is the power of Narad Muni. And that is why he is such an amazing character throughout the whole Shrimad Bhagavatam and all the even Puranic कथाओं में उनका बहुत अच्छा वर्णन है. And the way he has done things was always for the pleasure of the Lord, है ना? There are some instances जहां पर he tried to do something for himself, and then he has to you know he has to get he has to pay very dearly because उसने अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करी. But we'll talk about that later. Let's read the purport. Who wants to read the purport? Can I read, Prabhuji? Please, Mataji, please. The great Rishi Narada, who is empowered incarnation of personality of Godhead, propagates devotional service all over the universe. All great devotees of the Lord, all over the universe and in different planets, species of life, are his disciples. Sri Vyasdeva, the compiler of the Srimad Bhagavatam, is also one of his disciples.
Narada is the author of Narad Panchatatra, Pancharatna, which is Pancharatra. Pancharatra. Pancharatra, which is exposition of the Vedas, particularly for the devotional service of the Lord. This Narada Pancharatra trains the karmis or the fruitive workers to achieve liberation from the bondage of the fruitive work. The conditioned soul are mostly attracted by the fruitive work because they want to enjoy life by the sweat of their own brows. The whole universe is full of fruitive workers in all species of life. The fruitive works includes all kind of economic development plans, but the law of nature provides that every action has its resultant reaction, and the performer of the work is bound up by such a reaction, good or bad. The reaction of good work is comparative material prosperity, whereas the reaction of the bad work is comparative material distress. But material conditions either in so-called happiness or in so-called distress are all meant ultimately for the distress only. Foolish materialists have no information of how to obtain eternal happiness in the unconditional state. Sri Narada informs these foolish fruitive workers how to realize the reality of happiness. He gives directions to the deceased men of the world how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. The physician directs the patients to take treated milk in the form of curd for his suffering from the indigestion due to his taking another milk preparations. So the cause of the disease and the remedy of the disease may be the same, but it must be treated by an expert physician like Narada. The Bhagavad Gita also gives the same solution for serving the Lord by fruits of one's labor that will lead one to the path of Nishkarma or liberation. Hare Krishna. Hare Krishna. So what's happening here is, as we discussed, Narad Muni is an amazing character. Even Vyasadev, जो हम ये श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, उनको भी, व्यासदेव को भी, व्यासदेव के भी गुरु थे वो, है ना? Vyasadev, when he did all these Puranas and everything, he wrote so many Vedas, all the 4 Vedas, Puranas, सारी चीजें, he wrote Itihasas and everything. तो, but he was not satisfied, है ना? And then Narad Muni went there and said, अच्छा, व्यासदेव जी कैसा लग रहा है? तो व्यासदेव को पता है मेरे गुरु हैं, तो उनको वैसे ही सब कुछ पता है. बोले क्या पूछ रहे हो आप, बुरा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना सब कुछ लिख दिया है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा मुझे. तो उन्होंने बोला सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिला, सीधा पति पूरे एकदम से ना इस कट थ्रोट पे आ जाते हैं वो नारद मुनि. उन्होंने साफ साफ बोला, देखो देयर इज द रीजन आपको मजा नहीं आ रहा है इतना सब लिखने के बाद, बिकॉज तुमने स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली भगवान की ग्लोरिफिकेशन में एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं लिखा है. सब में आपके सारे वेदास में, पुराणों में भगवान की स्तुति है, लेकिन उनकी स्पेसिफिकली उनके लिए ग्लोरिफिकेशन नहीं लिखा है, इसलिए यू आर नॉट सेटिस्फाइड. नाउ वो जो समय था जब नारद मुनि ने व्यासदेव जी को ये बताया था कि दिस इज द रीजन व्हाई यू नॉट हैप्पी, दिस implies to all of us. Now what we are trying to do, all of us, we are trying to enjoy this world with our own efforts, है ना? अवजानन्ति माम मूढ़ा, नहीं सॉरी नॉट दिस वन, एक और वर्स है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते. हमें क्या लगता है कि आई वांट टू बी हैप्पी, बट आई कैन बी हैप्पी थ्रू माय ओन एंडेवर्स, है ना? हमें ये पूरी तरीके से यकीन है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर मिजरेबल. द रीजन व्हाई वी आर मिजरेबल, क्यों हमें लगता है हम अपनी स्ट्रेंथ पे वी कैन हम कुछ भी पहाड़ तोड़ लेंगे, है ना? However, नारद मुनि when he told व्यासदेव, he said exclusively भगवान के लिए आपने लिखा ही नहीं है. If you can, भगवान को क्या बोलते हैं? ऋषिकेश, है ना? ऋषिक का क्या मतलब होता है? इंद्रियां. और ऋषिकेश का क्या मतलब होता है? जो इंद्रियों के स्वामी है. अगर हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लग जाएंगे तो क्या होगा? हम लोग कभी भी खुश नहीं रह सकते. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू.
लेकिन उसी तरीके से इफ अगर हम किसी भी तरीके से भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगेंगे, देन वी विल बी वेरी सेटिस्फाइड, विल बी रियली हैप्पी एक्चुअली। नाउ हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे जैसे मैंने बोला था ना एक बार, सपोज मेरा ये हाथ है ना, दिस हैंड को लगता है कि यार ये क्या है यार, इतना अच्छा अच्छा खाना बनता है, हम लोग उठाते हैं और मुंह को पकड़ा देते हैं और पेट में चला जाता है। तो मुंह को भी बोला तेरे को भी कुछ नहीं मिला, दांत को बोला तेरे को भी कुछ नहीं मिला, हाथ ने बोला किसी को कुछ नहीं मिल रहा है जी, ये सारा कुछ पेट लेके जा रहा है ना, तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या करना है, स्ट्राइक कर देते हैं। तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्ट्राइक करी तो उन्होंने बोला, मैं हाथ ने बोला मैं उठाऊंगा ही नहीं खाने को, अब खा लो क्या खाना है। तो पेट के पास कुछ पहुंचा नहीं, पेट ने कुछ नहीं बोला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद हाथ ने अपना काम करना बंद कर दिया, मुंह सूखने लग गया, एवरी सारे के सारे जो अंग थे वो शिथिल पड़ गए, दे ऑल बिकम वीकेंड बिकॉज नरिशमेंट नहीं था। तब उनको समझ में आया, हाथ को समझ में आया, यू नो व्हाट, इट्स नॉट अबाउट माई हैप्पीनेस। हाथ ने क्या सोचा, इट्स नॉट अबाउट माई हैप्पीनेस, इट्स अबाउट कि जैसे ही मैं पेट को हैप्पी करूंगा आई विल गेट नरिशमेंट, है ना। एंड देन वो हाथ ने उठा के खाना खाना शुरू करा, एंड देन नरिशमेंट उसको मिला। नाउ हमारे साथ भी यही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये हाथ के जैसे हैं, कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं भगवान को नहीं सर्व करूंगा, मैं अपने आप को सर्व करूंगा। देयर इज नथिंग यू कैन डू। इस हाथ को किसी और तरीके से आप नरिशमेंट दे ही नहीं सकते, इट हैज टू गो थ्रू स्टमक। सो यही बात कौन बता रहा है, नारद मुनि, पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत में, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, है ना। वो सब लोगों को बता रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों फंसे पड़े हो, पता है, यू नो, बिकॉज ऑफ द बॉन्डेज ऑफ फ्रूटी वर्क, है ना। तो ये जो आपका जो बॉन्डेज है ना, फ्रूटी वर्क का क्या मतलब होता है, हम जो काम करें उसका फल हमें चाहिए, है ना, उसको कहते हैं फ्रूटी वर्क। जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस में क्या होता है कि भाई आई विल गिव यू मनी, आप मुझे माल दो, है ना, दिस इज व्हाट हैपेंस इन बिजनेस। तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग को काम किस लिए करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं क्योंकि वी आर डूइंग, वी वांट फ्रूट आउट ऑफ इट, है ना। आजकल लोग किसी से हेलो हाय भी नहीं बोलते हैं अगर उनको फ्रूट नहीं मिल रहा हो कुछ, है ना, कि हाय हाउ आर यू। इसलिए तो जैसे कई बार होता है ना कि समटाइम्स अच्छे से मैं अपनी वाइफ से बात करो तो पूछती है क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। अरे भाई, आई एम इन अ गुड मूड, क्या चाहिए का क्या मतलब है, नहीं, एक्चुअली क्या होता है, वी, क्योंकि वी आर, हमारी मेंटेलिटी फ्रूटिव है, दिस इज व्हाट वी आर। हम लोग को किसी से प्यार से भी तभी बात करेंगे देन व्हेन वी आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। और जैसे ही वहां से प्यार आना बंद हुआ, यहाँ से प्यार की सप्लाई खत्म, है ना। एंड दिस इज व्हाई वी, हमारी पूरी जिंदगी फ्रूटी वर्क में निकली है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड कंडीशनड सोल। और यही जो हमारी जो बंधन है ना, इस पूरे जन्म मरण का जो बंधन है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रूटिव वर्क दैट वी आर डूइंग। हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, वी वांट समथिंग इन रिटर्न, है ना। बट भगवान क्या बोलता है, यू विल गेट एवरीथिंग, यू जस्ट वर्क फॉर मी। अभी हम लोग ना भगवत गीता का 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कृष्ण भगवान अराउंड वर्स नंबर 8, 9, 10, 11, 12, इतना बढ़िया वो बता रहे हैं, सेइंग दैट हाउ यू, चैप्टर 12 है भक्ति योगा के बारे में पूरा, है ना। तो उसमें बता रहे हैं कि हाउ यू कैन, अगर तुम, पहला पहला इंस्ट्रक्शन भगवान देते हैं कि तुम अपना पूरा चित्त मेरे अंदर लगाओ, ठीक है, यू थिंक ऑफ मी 24/7, पहला वो बताते हैं। फिर अगर उससे, फिर भगवान को पता है कि ये सब ना ढीठ है, इनको कुछ नहीं होने वाला है, कलयुग के पैदाइश हैं सारी, इनको कुछ नहीं, इनसे नहीं होने वाला है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, मेरे बारे में पूरा मत सोचो, लेकिन तुम जो काम करो ना, वो काम जो कर रहे हो ना, कर्म करो, लेकिन उसकी फल की इच्छा मत करो, है ना, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, पहले बोलते हैं तुम जो कर्म करो मेरे लिए करो। तो पहला इंस्ट्रक्शन था कि हम अपना चित्त मेरे में लगाओ 24/7। अगर वो नहीं होता है तो जो कर्म कर रहे हो वो मेरे लिए करो। व्हाट डज दैट मीन, कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप ऑफिस इसलिए नहीं जाओ कि पैसा मिलेगा एंड आई विल बाय अनदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड टेल ऑल माय फ्रेंड्स कि मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई। नहीं, मैं काम इसलिए कर रहा हूँ सो दैट व्हेन आई गेट द मनी आई विल बाय प्रसादम, सो दैट आई कैन बाय भोगा वगैरह, फिर ताकि माय फैमिली कैन ईट प्रसादम एंड वी कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस, है ना। तो दैट इज मतलब मेरे लिए कर्म करो। फिर भगवान कहते हैं यार ये लोग इतना भी नहीं होगा इनसे, फिर कहते हैं अगर तुम ये भी नहीं कर पाते हो ना, तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन
कर्म करो, मेरे लिए मत करो, नॉर्मल कर्म करो, लेकिन उस कर्म का जो फल है ना वो मत लो। व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब है? वो क्या बोल रहा है, अगर तुमसे ये भी नहीं होता, मेरे लिए नहीं कर्म कर सकते हो, तो एक काम करो, तुम अपने लिए भी मत करो कर्म। कर्म करो, लेकिन जो भी फ्रूट मिल रहा है उसको आप ना उस कोशिश करो कि आप उसको डोनेट करो, मतलब आपकी सैलरी में से एक परसेंटेज डोनेट करो, अस्पताल अस्पताल में, अनाथालय में, दान धर्म में ना। ऐसा करो कि आपके पास जो आ रहा है पैसा या कुछ भी आ रहा है, धन संपत्ति यश जो भी आ रहा है, उस पे आसक्ति ना हो, उसके लिए आप उसको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो दूसरों के लिए, है ना। उसके बाद ही बोलते हैं, अगर तुमसे वो भी नहीं होता है ना, अगर तुमसे वो दान भी नहीं होता है, देन यू गो एंड डू गेट ज्ञान, है ना। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन लो, मतलब तुम अभी ऐसी स्टेज पे हो कि तुम आपसे इंफॉर्मेशन ही नहीं कि तुम कौन हो, सो यू गो एंड गेट सम ज्ञान, है ना। ज्ञान, जिसे हम ज्ञान योग जिसकी बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, लेकिन उससे भी उसके बाद उन्होंने बोला ज्ञान योग से ज्यादा अच्छा है ध्यान योग, और ध्यान योग से भी ज्यादा अच्छा क्या है? भक्ति योग। फिर उन्होंने ये सारी चीजें आगे बताई। तो यहाँ पर क्या है, द रीजन वी हैव बॉन्डेज इज बिकॉज हम लोग फ्रूटिव हैं, हमको हर चीज में वापस चाहिए, और हम लोग वी वांट टू एंजॉय लाइफ बाय स्वेट ऑफ आवर ओन ब्रोज, है ना। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार, अहंकार विमूढ़, विमूढ़ का मतलब होता है बेवकूफ। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता, अपने आप को क्या बोलता है कि मैं हूं, करता हूं, मैं ही करता हूं, है ना, जो भी है वो मैं ही करता हूं। जैसे हम लोगों में से जो भी ब्रेड विनर हैं घर के, वो हम लोग क्या लगता है कि नहीं यार, मैं नहीं करूंगा तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना, मैं नहीं करूंगा तो वाइफ भूखी मर जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है ना। मेरे फादर कमाते थे तो उनको भी ये लगता था, है ना, कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। देन ही गॉट रिटायर्ड, फिर भी सब चलता रहा। एंड देन ही पास्ड अवे, फिर भी सब चलता रहा। नथिंग स्टॉप्स, नथिंग स्टॉप्स, है ना। तो ये जो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते, कि मैं करता हूं यही मानते रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट फुलिश थिंग, है ना। तो फ्रूटी वर्क्स इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। हमें क्या लगता है कि अभी हम लोगों को किसी तरीके से सक्सेस चाहिए, है ना। अब वो सक्सेस का मैंने लास्ट टाइम में आप लोगों को बताया था, व्हाट इज सक्सेस। हम लोगों को, सब लोगों को सक्सेस चाहिए कि यार डेवलपमेंट प्लान्स करने हैं सक्सेस, लेकिन सक्सेस फॉर एवरीवन इज कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। एक 2 साल के बच्चे के लिए सक्सेस क्या है, सॉरी 1 साल का बच्चा है उसके लिए सक्सेस क्या है? उसके लिए सक्सेस ये है कि वो जब भी रोए उसकी माँ उसको खाना खिला दे, दैट्स इट, ही सक्सेसफुल। ठीक है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, 2 ढाई साल का हो जाता है, तो पॉटी ट्रेनिंग हो जाए उसकी, एंड ही थिंक्स दैट इज सक्सेस ऑफ हिज लाइफ। ठीक है। फिर वो 3 साल 4 साल का हो जाता है, तो उसको लगता है कि मैं बेड पे सुसु नहीं करूं, दैट इज हिज सक्सेस। ठीक है। और उसके बाद वो 6 साल 7 साल का हो जाता है, तो उसको लगता है कि किसी तरह मैं साइकिल चला लूं, दैट इज माई सक्सेस, है ना। हर एक जगह पे हमारी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो रही है। फिर जब वो टीनेजर बन जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे सारे दोस्त, मेरा मेरा नाम का दबदबा हो सब जगह, एवरीबडी शुड लव मी, दैट इज हिज सक्सेस। एंड देन वी, उसके बाद हमें क्या लगता है, किसी तरीके से अच्छे मार्क्स आ जाए, दैट इज अ सक्सेस। फिर लगता है किसी तरह अच्छी नौकरी मिल जाए, दैट इज अ सक्सेस। फिर लगता है किसी तरह अच्छी छोकरी मिल जाए, दैट इज अ सक्सेस। फिर उसके बाद लगता है कि यार छोकरी मिल गई, अब एक अच्छा सा घर मिल जाए, दैट इज अ सक्सेस। घर मिलने के बाद अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, दैट इज अ सक्सेस। फिर उसके बाद गाड़ी मिलने के बाद वी थिंक दैट हमारे पास बच्चे हो जाएं, दैट इज अ सक्सेस। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर वो वांट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दैट विल बी सक्सेस। फिर वो वी वांट हॉलिडे हाउस, दैट विल बी सक्सेस। एंड देन आफ्टर दैट वी बिकम, वी थिंक ओके, अब क्या है नेक्स्ट सक्सेस, क्या है कि किसी तरह की मेरे जो बच्चे हैं ना वो अच्छे सबसे ज्यादा अच्छे स्कूल में जाएं, दैट इज अ सक्सेस। फिर उसके बाद वो जो छोटा बच्चा है, आपका बच्चा है, उसकी वही सक्सेस वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर आप जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो सक्सेस क्या लगता है कि किसी तरह अच्छी सी लड़की मिल जाए उसके, या लड़का मिल जाए, शादी हो जाए। शादी हो गई, फिर क्या सक्सेस होती है, एक पोता हो जाए, नाती पोता कुछ हो जाए। फिर वो सक्सेस, फिर वो हो गया, उसके बाद लगता है कि यार, फिर एंड में क्या होता है, जब आप 80 90 साल के हो जाते हो, तो आपके लिए सक्सेस क्या हो जाती है, वापस किसी तरह बेड में सुसु नहीं हो जाए, दैट्स इट, दैट इज योर सक्सेस। सो जो साइकिल जहां से चली है, वी गो बैक टू द सेम साइकिल एंड वी डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स वी आर डूइंग द सेम थिंग। हम इतने जन्मों से यही चक्रव्यूह में घुस रहे हैं, बिकॉज what we want to do is development plans. We always have plans. मैं नहीं कह रहा हूं कि we should not have plans. One of the things you have to remember, if you fail to plan, you're planning to fail.
I said that in the Friday class as well, है ना? If you fail to plan your life, then you're planning to fail in your life. Guaranteed है. You have to have some sort of plan. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सक्सेस जो एक्चुअल सक्सेस है उसको भूल जाओ. We should know कि हमारी एक्चुअल सक्सेस क्या है. If we can remember Lord when we are dying. अंतकाले च मामेमा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. ये याति से प्रसादम याति यात्री न यह याति नास्ति अत्र संशय. इसमें कोई संशय नहीं है कि सबसे बड़ी जो सुख क्या है. अंतकाल चमामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम. जो सुन भगवान के बारे में सोचता है मरते वक्त, वो भगवान के पास जाता है ना? और हमें वहां जाना है. अगर हमें ये बात क्लियर है तो एवरीथिंग एल्स वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, है ना? Now the reaction of good work is comparative material prosperity, whereas the reaction of bad work is comparative material distress. हम लोगों को क्या बताया जाता है कि पाप करोगे दुखी रहोगे, पुण्य करोगे तो खुश रहोगे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में, गलत काम करने में, पाप में और पुण्य में, दोनों में प्रॉब्लम क्या है? वी विल हैव टू कम बैक, है ना? और देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. दिस इज गारंटी, है ना? देयर इज नो एक्चुअल हैप्पीनेस. हम लोगों ने ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में अच्छे से पढ़ लिया था. देयर इज एक्चुअल हैप्पीनेस इज व्हेन वी रियलाइज हु वी आर, who God is, और हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है. और when we understand that, उसकी तरफ we start working towards it, that is the real happiness. And when we get to him, then we will be ultimately happy. उसके अलावा there is no happiness. It's just a shadow of happiness, है ना? Just a shadow of happiness. अभी क्या है कि यहाँ पर प्रभुपाद और क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद is saying that a physician, अब क्या हमारी कंडीशन क्या है? ऐसा डिजीज्ड वी आर, हम लोग बीमार है ना? सो होता क्या है कि he gives direction to the diseased man of the world how one's present engagement can lead one to the path of spiritual emancipation. क्या खतरनाक. शिला प्रभुपाद जब लिखते थे, उनकी देखो इंग्लिश कितनी जबरदस्त है. What he's saying is कि नारद मुनि जैसे जो गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, ताकि वो हमें बता सके, hey you know what, आपके पास ये डिजीज है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डिजीज है, वो PAGEL है ना, प्राइड एंगर ग्रीड, है ना, एनवी एंड लस्ट, है ना, PAGEL पागल. ये दिस इज माय, ये मेरी डिजीज है ना? और ये कई बार हम भूल जाते हैं. हमें क्या लगता है, वी आर द बेस्ट, यू नो, बिकॉज आई डू 16 राउंड्स, है ना, और बिकॉज आई कैन गिव सम क्लासेस, यू नो, मुझे ये लगने लग जाता है कि यू नो आई एम द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. एंड देन दूसरे दिन ही माया ऐसी चपत मारती है, फटाक, एंड यू फॉल डाउन एंड रियलाइज, ओ माय गुडनेस यार, ये तो बिना बिना पंख के ही उड़ रहे थे, है ना? तो क्यों वी नीड टू अंडरस्टैंड हम लोग डिजीज्ड हैं. और उसकी रेमेडी क्या है? इस डिजीज की रेमेडी क्या है? हरि नाम. दिस इज द ओनली रेमेडी वी हैव. फिर कई बार प्रभुपाद ये बताते हैं कि फिजिशियन जो क्या बोलता है, फिजिशियन जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भगवान को भूल गए, है ना, भगवान को भूल गए. और जो हमारा सॉल्यूशन क्या है, हम भगवान को याद रखें. यस, दैट्स अ सॉल्यूशन. तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी मिल्क स्वीट खाने से इंडाइजेशन हो जाता है. उस डाइजेशन को सॉल्व करने के लिए फिजिशियन क्या देता है? दही देता है. वो भी मिल्क का ही बना हुआ है, लेकिन दही फायदा करता है और मिल्क हमें नुकसान कर रहा है, जबकि बना हुआ एक ही चीज से, है ना? तो हमारा जो गुरु होता है, दिस इज व्हाट ही इज एक्सपर्ट इन. ही नोज कि आपको डिजीज क्या है और आपको कब दवाई देनी है और कौन सी दवाई देनी है ना? इट नीड्स टू बी एन एक्सपर्ट फिजिशियन लाइक नारद, है ना? और भगवत गीता में भी यही सॉल्यूशन बताया भगवान ने कि सर्विंग द लॉर्ड बाय द फ्रूट्स ऑफ वंस लेबर, एंड दैट विल लीड द पाथ ऑफ नैष्कर्म्य, है ना? नैष्कर्म्य का क्या मतलब होता है? लिबरेशन, है ना, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त. सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप कर्म करते रहो, क्योंकि हम कर्म के बिना हम नहीं रह सकते. जैसे बुद्धिस्ट लोग कहते हैं ना कि हमारा हर एक मूवमेंट हमें सिन दे रहा है ना? तो हमें क्या करना है? मूवमेंट करना बंद कर दो, है ना, अपनी इंद्रियों को खत्म कर दो, मार दो अपनी इंद्रियों को, है ना? तो वो नहीं करना है हमें शिला, क्योंकि इट्स गुड करना है, अगर हो सकता है तो करना चाहिए, लेकिन वो हमसे नहीं होगा क्योंकि कलयुग में इट्स वेरी हार्ड. सो शिला प्रभुपाद क्या बताते हैं? ऑल वी हैव टू डू इज, हमारे जो कर्म है, जो भी हम कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसको हम भगवान को अर्पण कर दें, है ना? जो भी हम काम कर रहे हैं,
कोई भी काम कर रहे हो आप, जो भी जॉब है आपका, या फिर हाउस वाइफ भी हो, हाँ, है ना, कुछ भी जॉब कुछ भी है, यू डू इट एज ए सर्विस टू लॉर्ड। तो इंडिया में बहुत फेमस चीज है कि लोग अपने भगवान श्री कृष्ण को वो बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं। कोई बिजनेस शुरू करा एंड दे विल से भगवान कृष्ण इज माय पार्टनर। एंड एक्चुअली पहले तो बहुत अच्छे भाव से होता था, आई डोंट नो आजकल कैसे होता है। पहले, आजकल तो सिर्फ शायद इसलिए होता है कि भगवान कृष्ण का नाम होगा तो शायद भगवान कृष्ण, हम पैसा हमारा है, वो हो जाएगा। लेकिन पहले भगवान को लोग अपना पार्टनर सच में बनाते थे, और यही कहते थे कि ये, अभी यहाँ पर भी मेलबर्न में भी एक डिवोटी हैं, वो कहते हैं कि उनका सीईओ का नाम है कृष्ण, है ना। तो एक्चुअली वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं तो उनके लिए काम करता हूँ, आई एम ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा, और ये एक्चुअल सीईओ कृष्णा के हैं। तो वो क्या करते हैं, इन्होंने एक अकाउंट खुलवा रखा है, उसका निकनेम कृष्णा डाल रखा है। एवरी पेमेंट गोज इनटू दैट अकाउंट। फिर वहां से वो भगवान से मांगते हैं कि भगवान देखो, मेरे को पेट्रोल का पैसा निकालना है, मेरे को घर पे बच्चों की फीस देनी है, मेरे को इसका पैसा चाहिए, मैं इसमें से इतना निकाल रहा हूँ। ही स्पीक्स टू कृष्णा बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर कृष्णा। नाउ बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर कृष्णा, उसका जो जॉब है, आईटी का जॉब है, दैट बिकेम भक्ति एज वेल फॉर हिम। You know what I mean? And this is the beauty of bhakti. Anything that you're doing, you can actually use that in the bhakti. How you connect it to Krishna, that is, वो क्या भाव है, उसी भाव का रेसिप्रोकेशन भगवान देगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। जिस भाव से हम भगवान को देखेंगे, सोचेंगे, उनके बारे में प्रे करेंगे, उसी रूप में भगवान हमारे सामने होंगे, है ना। तो जो लोग भगवान को अच्छे भाव से सच में अपना वो मानते हैं, पार्टनर मानते हैं, है ना, then Bhagwan, will reciprocate accordingly. However, the solution is to serve the Lord by the fruits of one's labor. That is the thing that we need to really do. You know? Let's see why I don't know why I can't do this. Okay, हाँ हो गया, हो गया. Okay, let's do the next one. तुर्य धर्म कला सर्गे नर नारायणी वृषि भूत्वा भूत्वात्म वात्म उप उपशमे पेतम करो दुश्चरम तपः. In the fourth incarnation, the Lord became Nar and Narayan and the twin sons of the wife of King Dharma. Thus he undertook severe and exemplary penances to control the senses. Anybody wants to read the purport? मैं read करता हूँ. Okay. As King Rishabh advised his son Tapasya, or voluntary acceptance of penance for realization of the transcendental, is the only duty of the human being. It was so done by the Lord himself in exemplary manner to teach us. The Lord is very kind to the forgetful souls. He therefore comes himself and leaves behind necessary instruction, and also send his good sons as representative to call all the conditioned souls back to Godhead. Recently, within the memory of everyone, Lord Chaitanya also appeared for the same purpose, to show special favor to fallen souls of this age of iron industry. The incarnation of Narayana is worshipped still at Badri Narayan on the range of the Himalayas. हरे कृष्णा. तो यहाँ पर बता रहे हैं, the fourth incarnation of Lord became नर and नारायण, है ना. एक्चुअली जो नर नारायण है ना, उसमें से जो नर है वो अर्जुन है, नारायण इज कृष्णा, है ना. तो एक्चुअली दीज आर ट्विंस, है ना. और किंग धर्मा, वाइफ ऑफ किंग धर्मा की ट्विन हुए थे, उनका नर नारायण ऋषि, जो जिनके बारे में बोला जाता है ना. अभी जो नर नारायण ऋषि थे, दे डिड सीवियर एंड एग्जाम्पलरी पेनेंसेस. और पेनेंसेस जो होता है ना, जो हमारी तपस्या जिसको कहते हैं, इट इज वेरी एग्जाम्पलिफाइड इन आवर शास्त्रास. हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में तपस्या का क्या मतलब होता है? वॉलेंटरी, टेकिंग वॉलेंटरी trouble, voluntarily taking some trouble, giving some trouble to this body and mind so that we can get purified, है ना. अब ये कोई बोलेगा यार दिस इज रबिश. कई बार होता है ना, पहले मैं छोटा था तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी ये क्या यार, आप फास्ट कर रहे हो, है ना, आपके आपके फास्ट करने से भगवान का क्या लेना देना, है ना. व्हाई वुड भगवान बी हैप्पी कि यार तुम फास्ट कर रहे हो, पेट पकड़ के पूरे दिन बैठे हो, है ना. भगवान को क्या मजा आएगा इसमें? और फिर आप कहते हो भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है. अगर हम
अगर मैं भूखा मर रहा हूं यहाँ पर, तो मेरे मेरे पापा को तो मजा नहीं आएगा. ही विल बी एंग्री एंड ही विल बी अपसेट, ही विल आस्क मी टू ईट. तो भगवान क्यों करते हैं? तो is there anyone who wants to answer this? How would you answer that? कोई बोलेगा कि what is the reason why we do all this fasting वगैरह, क्यों करते हैं हम लोग, और भगवान को इसमें क्यों मजा आता है? आई थिंक प्रभु इसमें भगवान को मजा नहीं आता. दिस इज फॉर आवर प्यूरिफिकेशन. Yes, exactly right. It's not about भगवान, है ना, भगवान को मजे के लिए नहीं कर रहे हैं. Exactly right. This is not, जो ये voluntary acceptance of penance is for us, for our purification. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई भी, किसी ने मेटलर्जी अगर पढ़ी है, तो मेटलर्जी में क्या होता है, मेटल्स में ना काफी सारी इंप्योरिटीज होती है. ठीक है, उस इंप्योरिटीज को निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, उस मेटल को बहुत भट्टी में झोंक दो. वो भट्टी में झोंकने के बाद क्या होता है कि जो काम का मेटल होता है वो पिघल के नीचे आ जाता है और गंदगी ऊपर रह जाती है. तो हम जो तपस्या करते हैं, जो अपने आप को वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस डालते हैं इसमें तपस्या के लिए, वो क्या करता है, हमारी जो गंदगी होती है ना अंदर की, उसको बाहर निकालने में, उसको अपने अपने से अलग करने में हमारी हेल्प करता है ना. इट्स लाइक ए क्लीनिंग प्रोसेस. ठीक है, दैट दैट इज कॉल्ड तपस्या. ठीक है, अब क्या है, हम क्या भूल गए, है ना. हम एक्चुअली जो ह्यूमन बर्थ है उसका एक ही रीजन है, टू रियलाइज गॉड, बट भी भूल जाते हैं. लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, लॉर्ड इज वेरी काइंड टू द फॉरगेटफुल सोल्स, है ना. अब वो हम लोग भूल गए तो क्या उन्होंने क्या करा, उन्होंने हम लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन भेजे. सबसे पहले हम लोगों को बोला भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, है ना, पुराना वेदा सारी चीजें भेज दी. ठीक है, फिर हम उनको पता था ये सब निकम्मे नालायक, इनको कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा नहीं, इनको बस बोल दिया कोई नहीं पढ़ने वाला है, तो क्या करेंगे, तो एक काम करो, इनको ना इनके लिए रिप्रेजेंटेटिव भेजो, जैसे शिला प्रभुपाद को भेजो. अब शिला प्रभुपाद की पता था कि मैं इनको लिख के भी दे दूंगा ना, ये कुछ नहीं होने वाला इनका, तो मेरे को इनको समझाना पड़ेगा इनकी लैंग्वेज में. तभी तो परपट लिखे इतने सारे कि ये इन लोग, हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को समझ में नहीं आने वाला है. तो उन्होंने अपने परपट लिखे कि दिस इज व्हाट इट मींस प्रैक्टिकली, हाउ डू यू apply these things in Kali Yuga, and that's what he is doing. So he sends his good sons as representative to call in the conditioned souls back to Godhead. और all of these people, what they are doing is they are calling us back to Godhead, है ना. हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देने के लिए भेज रहे हैं, है ना. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. जैसे शिला प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है उसमें कहते हैं कृष्णा नमो ओम विष्णु पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने. तो शिला प्रभुपाद और जितने भी ये गुरुज हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, है ना. दे आर एक्चुअली सेंट. कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले, कृष्णा ने उनको भेजा है भूतले, सो दैट दे कैन हेल्प अस गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, है ना. एंड उसके बाद शिला प्रभुपाद यहाँ पर लॉर्ड चैतन्य का नाम ले रहे हैं. लॉर्ड चैतन्य केम एज हिमसेल्फ, लाइक यू नो, he came in the mood of Radharani, so that we can actually he can take us back, है ना. The incarnation Narayan is worshipped still at Badri Narayan on the range of Himalayas. तो आप लोगों में से कोई गया है बद्री नारायण, तो you will see it's such a beautiful place, जहां पर नर नारायण ऋषि का जो आश्रम है ना, it's beautiful. मैं कभी नहीं गया हूं, but I've heard it's absolutely stunning. All right, let's go to the next one and see if my laptop is working. Yeah, it works. While you're doing that, Yes. my sister is actually today in Badrinaran. Oh, really? तो Yeah. उनको बोलना ना, फोटोज बद्री नारायण की फोटोज लेके ना. She sent me this morning. She went for darshan in the morning. Oh wow, such a coincidence, huh? Amazing. Send it. It's amazing. All right. पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरये सांख्य तत्वग्राम विनिर्णयम. क्या बोल रहे हैं? The fifth incarnation names Lord Kapila is foremost among perfected beings. He gave an exposition of the creative elements and metaphysics to Asuri Brahmana. For in course of time this knowledge has been lost. So काफी सारी knowledge है जो बीच में खत्म हो गई है. लॉर्ड कपिला, इनका नाम था कपिल देव. जो हमारे जो कपिल देव है ना क्रिकेटर, उनका नाम इन कपिल देव के लिए के उस पे ही रखा हुआ है. कपिल देव इज इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, और इन्होंने सांख्य फिलोसफी दी थी. सांख्य फिलोसफी इज एनालिटिकल स्टडी
ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल मतलब जो साइंटिफिक स्टडी होती है ना, जो एनालाइज करना कि कैसे हो रहा है, कैसे जो फिजिकल एलिमेंट्स है कैसे मिक्स हो रहे हैं और हाउ इज इट इम्पैक्टिंग, वो कैसे जो है मटेरियल और स्पिरिचुअल का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने अच्छे से डिटेल में बताई है, सांख्य योग जिसको कहते हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ, टाइम के साथ वो नॉलेज चली गई, है ना। तो अभी देखते हैं शिला प्रभुपाद प्रॉपर्ट में क्या बोलते हैं। कौन पढ़ेगा प्रॉपर्ट? मैं कहता हूँ प्रभु जी। ओके। the sum total of the creative elements in 24 in all, each and every one of them is explicitly explained in the system of Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is generally called metaphysics by the European scholars. The etymological meaning of Sankhya is that which explains very lucidly by analysis of the material elements. This was done for the first time by Lord Kapila, who is said herein to be the fifth in the line of the incarnation. तो द फिफ्थ इनकारनेशन लॉर्ड कपिला का था। तो उन्होंने क्या करा है कि 24 देयर आर 24 एलिमेंट्स, है ना। 24 एलिमेंट्स कैसे हैं? देयर आर 5 वो हैं, भूमि रपो नलो वायु, है ना। ये क्या है? एयर वाटर फायर ईथर, एयर वाटर ईथर, Ether, तो 5 एलिमेंट हो गए। देन देयर आर 5 कर्मेंद्रियां, है ना। एंड देयर आर 5 ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। एंड देयर आर 5 कर्म, सॉरी 5 knowledge acquiring senses, 5 working senses, और 5 sense objects एंड 5 और उसके बाद है, उसके बाद आता है अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, है ना। और फिर जो 24वां एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड सोल, है ना। तो इस तरीके से सांख्य उन्होंने बताया। वी विल रीड लॉर्ड कपिल देव का जो वो आएगा आगे चैप्टर्स, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इफ वी कंटिन्यू विद दिस वी विल रीड दिस इन डिटेल। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है, इट्स अमेजिंग। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है, पीपल हु लव एनालिटिकल स्टडीज, है ना। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स यू नो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जहां पर ना मैक्सिमम लोग सो जाते हैं। ऐसी ऐसी क्लासेस होती हैं इसमें, एनालिटिकल इतनी जबरदस्त है। एनीवे 1311 षष्टम रपत्यत्वम व्रतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षीकिल मर्काय प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। तो भगवान के इसमें क्या हो रहा है? द सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ द पुरुषा वाज द सन ऑफ सेज अत्रि. He was born from the womb of Anusuya, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendence to Alarka, Prahlad and others. Yadu, है ना। Purport, कौन पढ़ेगा purport? Prabhu, I will read. Please. The Lord incarnated himself as Dattatreya, the son of Rishi Atri and Anusuya. The history of the birth of Dattatreya as an incarnation of the Lord is mentioned in the Brahman Puran in connection with the story of the devoted wife. It is said there that Anusuya, the wife of Rishi Atri, prayed before the Lords Brahma, Vishnu and Shiva as follows: My Lord, if you are pleased with me and if you desire me to ask from you some sort of blessings, then I pray that you combine together to become my son. This was accepted by the Lords. And as Dattatreya, the Lord expounded the philosophy of the spirit soul and especially instructed Alakra, Prahlad, Yadu, Haihaya, etc. हरे कृष्णा। तो दत्तात्रेय जो थे, दत्तात्रेय के बारे में हम लोग तो छोटे थे तो मम्मी हम लोगों को बताती थी दत्तात्रेय के बारे में भी। तो भगवान के इनकारनेशन है, तो उन्होंने क्या फिलोसफी दी थी स्पिरिट सोल के बारे में ना। पूरे आत्मा क्या है, कैसे काम करती है, हाउ इज इट रिलेटेड टू मटेरियल वर्ल्ड, और कैसे आत्मा इज द ओनली थिंग दैट उसके कारण ही सारी की सारी लाइफ पॉसिबल है ना। तो ये दत्तात्रेय ने करा था। दत्तात्रेय की जो स्टोरी है वो भी आगे आएगी, है ना। तो इसमें उनकी जो माँ थी, उन्होंने ना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से बोला था कि यार आप प्लीज ना आप
आप ना कंबाइन होके मेरे मेरे बच्चे बन के आए। तो जो दत्तात्रेय थे, दत्तात्रेय इज ए कॉम्बिनेशन, हाँ दत्तात्रेय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के कॉम्बिनेशन है ना। तो उन्होंने प्रहलाद महाराज वगैरह इन सब लोगों को उन्होंने वो करा था, पढ़ाया था, है ना। So but there is lot of details that will come very soon, है ना। Okay, so I think this will be the last one and then we'll 1-3-12 ततः सप्तम अनु अकुत्याम रुचेर्यज्ञो भेजायत सयाम माद्ये सुरगणेर आपास्वा स्वयंभू वांतरम। कह रहे हैं the seventh incarnation was Yagna, the son of Prajapati Ruchi and his wife Akuti. He controlled the period during the change of Swambhu Manu and was assisted by demigods such as his son Yama. परपट पड़ेगा कोई? मैं read करता हूँ. The administrative posts occupied by the demigods for maintaining the regulation of the material world are offered to the highly elevated pious living beings. When there is a scarcity of such pious living beings, the Lord incarnates himself as Brahma, Prajapati, Indra, etc. and take up their charge. During the period of Swayambhu Manu, the present period is of Vaivatsatva Manu. There was no suitable living beings who could occupy the post of Indra, the king of Indraloka, heaven planet. The Lord himself at the time became Indra, assisted by his own sons like Yam and other demigods. Lord Yagna ruled the administration of the universal affairs. हरे कृष्णा। सो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जितने भी देवी देवता हैं, है ना, 33 करोड़ देवी देवता हैं और जो इंद्र वगैरह ये सारे लोग हैं, दे आर पोस्ट, है ना, दे आर जो हम जैसे जीव तत्व हैं जिनको ये पोस्ट दी जाती है डिपेंडिंग ऑन कि उनके कितनी पायस एक्टिविटीज है ना पुराने जन्मों की। नाउ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रह्मा बनने, एक्चुअली ब्रह्मा बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है कि आपको 100 जन्मों तक 100% वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है ना, 100% तक। और अगर आप 100 जन्मों तक लगातार करते हो देन यू गेट क्वालिफाइड टू बिकम ब्रह्मा, है ना। लेकिन जब ब्रह्मा बन रहे हैं उस वक्त अगर कोई क्वालिफाइड बंदा ही नहीं है जिसने 100 जन्मों तक करा हो, देन भगवान खुद ही बिकम्स ब्रह्मा, है ना। ही बिकम्स ब्रह्मा एंड देन ही डज द रेस्ट ऑफ द स्टफ। तो जो हमारे करंट ब्रह्मा है ये भगवान नहीं है, है ना। जो हमारे करंट ब्रह्मा है ही इज अ जीव तत्व बट ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। जो नामाचारी श्रीला हरिदास ठाकुर जो है वो ब्रह्मा के इनकारनेशन है ना। तो इस समय और ऐसा बाकियों के साथ भी होता है। जैसे इंद्र की पोस्ट भी एक जो पोस्ट है उसके लिए अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं आएगा देन भगवान विल टेक केयर ऑफ दैट। और इस समय जिस कल्प की इसमें बात हो रही है इसमें जो वो थे एट दैट टाइम भगवान खुद ही इंद्र बने थे, है ना। तो फिर उनके बारे में यहाँ बोल रहा है, उनका नाम है लॉर्ड यज्ञ, है ना। तो उन्होंने सारे का सारा जो स्वर्ग लोग है उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। ओके, सो द रीजन, अब कोई बोलेगा कि यार understood, like I understand, why are we reading about incarnation, क्यों जरूरी है incarnation पढ़ने का? कोई बता सकता है why is it important for us to know about the incarnations of Lord? क्यों जरूरी है? Why do we need it? So we know where our position is. Yes, good. I think अमरेंद्र प्रभु जी ने ना वो पूरा डिटेल में where Prabhupada is and where his position is. So he explained all the incarnation and it's a very complicated, long class he taken. And then at the end he explains this is where Prabhupada is. So imagine he is there. So we are nowhere to be found. Yeah, this is one reason. Definitely this is one reason. Because we need to understand, देखो भक्ति में ना संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। संबंध ज्ञान होना, अभिधेय ज्ञान होना, प्रयोजन का ज्ञान होना, है ना। संबंध का क्या मतलब होता है? हमारा भगवान का क्या संबंध है हमें समझ में आना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो नथिंग वी कैन डू। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है कि व्हाट इज द प्रोसेस, है ना। हमें अगर भगवान का संबंध पता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है समझने का, वो हमें पता होना चाहिए। और तीसरा
प्रयोजन, प्रयोजन कहते हैं कि व्हाट इज द गोल, है ना, गोल इज टू रियलाइज गॉड, है ना, टू गेट टू नो हिम। और उनको समझने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, हमारा हार्ट जो है अगर प्यूरिफाई हम हो जाएगा, देन वी विल अंडरस्टैंड हिम ऑटोमेटिकली, है ना। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। इज देयर एनी अदर रीजन कि हम लोगों को इनकारनेशंस वगैरह पढ़ने से और क्या मिलेगा हमें? व्हाट एल्स, व्हाई इज द अदर, व्हाट आर द अदर रीजंस? प्रभु तो मेरे को जो लगता है, या माता यू गो फर्स्ट। नहीं नहीं प्रभु जी, यू से प्लीज। बोलिए राहुल प्रभु। प्रभु मेरे मेरे को लगता है प्रभु कि हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होती है। किसी को वरादेव पसंद आएंगे, किसी को नरसिंह देव पसंद आएंगे, ऑब्वियसली राम सबको पसंद आएंगे, है ना। ब्यूटीफुल। सो भगवान ने सबके लिए मिर्च मसाला लगा के अलग अलग कैरेक्टर बनाया है, जिसको जो अच्छा लगे उसको फॉलो करो। ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड राहुल प्रभु, राहुल वेरी वेल सेड। रिचा माता जी आप कुछ बोल रहे थे? प्रभु, I was saying the same, not the same thing, but I was saying कि जैसे कि हमें जब किसी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है मटेरियल वर्ल्ड में भी, तो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट देम इफ वी रियली लाइक देम, और इफ यू वांट टू मेक एनी रिलेशनशिप विद देम। तो जैसे कि एक लड़की और लड़के की भी शादी होती है, देन दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर फैमिली एंड देयर बैकग्राउंड, एवरीथिंग. So this, in the same way, if we know that Lord Krishna is our like he's our master and we are servant, so we should know कि we want to make relation with him, so we should know each and everything about him. Beautiful. जितना हम सुनेंगे उनके बारे में, उनकी लीला, पास टाइम, incarnation and everything, so we will get more, we will get to know more about him, and that's how we will develop love for him. Beautiful. And वो service attitude आएगा कि how great he is, है ना, how powerful he is. एंड ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऐड किया राहुल प्रभु ने, जो कि अपनी अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग फिर हम रिलेट भी कर पाते हैं कि अच्छा राम भगवान बहुत आइडियल है, मतलब मोस्टली सबको ऐसा लगता है कि राम जी इज वेरी आइडियल, तो ही इज द फेवरेट लॉर्ड, है ना, फेवरेट लॉर्ड ऑफ इट। सो दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। वेरी एग्जैक्टली, मैं भी ये बोल रहा था। आई थिंक राहुल प्रभु का जो वो था ना, that is one of the things that is very deep, है ना। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसे तुम मेरे बारे में सोचोगे मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं जो श्री रामचंद्र के कैरेक्टर उनको ना, कई कई होंगे, देयर आर पीपल उनको रामचंद्र जी का कैरेक्टर उतना नहीं जमेगा, लेकिन नरसिम्हा देव उनको बिल्कुल जमेगा। और हाँ यार ये हाँ कोई हो तो ऐसा हो कि जो खंबा फाड़ के निकले और खत्म कर दे सबको, है ना। तो इफ यू गेट इंस्पायर्ड बाय नरसिम्हा देव, ब्यूटीफुल, है ना। और इफ यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय श्री रामचंद्र जी, ब्यूटीफुल। अगर इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय हनुमान जी, इवन ब्यूटीफुल, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन भगवान और उनका नाम, उनका इनकारनेशन और उनके पास टाइम, इनमें कोई अंतर नहीं है। सो जब हम लोग भगवान के इनकारनेशन के बारे में सुन रहे हैं, वी गेट डायरेक्ट एसोसिएशन विद भगवान, उनके इनकारनेशन के बारे में सुनने में। और दूसरा, इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे राहुल प्रभु ने बोला ना, मिर्च मसाला डाल के उसमें, इट इज सो इंटरेस्टिंग टू रीड दिस पास्ट टाइम्स। क्योंकि भगवान ने ना वो एक मूवी, उनको पता है कि ये लोग ना ये मेरे को छोड़ के इसलिए गए क्योंकि दे वांट टू एंजॉय, इनको मूवी मसाला बहुत पसंद है, तो इनको वैसे ही दूंगा मैं, है ना। अब आपको मूवी मसाला चाहिए, महाभारत जैसा ड्रामा कहीं कहाँ बनेगा? यू कैन कंपेयर एनी ड्रामा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, 4 साल 5 साल 10 साल चला लो उसको, लेकिन महाभारत के सामने टुच्चा भी नहीं हो, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज द डेप्थ दैट वी हैव इन रामायण महाभारत ड्रामा में, वो इसलिए है क्योंकि there are so many different people, we all have different propensities, है ना। according to our own propensities we will like something and we will dislike something, हमें कुछ चीजें पसंद आएंगी, कुछ चीजें हमें नहीं आएंगी। तो हम लोगों को इसलिए इतने सारे इनकारनेशन के बारे में जानकारी दी है। आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोले, दे आर ऑल वैलिड, कि बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड कि यार हम किससे डील कर रहे हैं। यार ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय जो बांसुरी बजाते रहते हैं ना, लड़कियों के कपड़े चुरा लेते हैं, है ना, सीटी मारते हैं, है ना, ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है भगवान कौन है, इसीलिए दैट्स व्हाई वी रीड दिस इनकारनेशन, सो दैट वी कैन गेट टू नो हिज डिफरेंट पोटेंसी, वो क्या क्या है, हु और क्या क्या भगवान कर सकते हैं। वैसे तो अनलिमिटेड है उनके इनकारनेशन, लेकिन फिर भी हम जितना सुनते हैं उतना हमारे ऑ एंड रेवरेंस बढ़ता है, हमें पता चलता है हम किससे डील कर रहे हैं।
दूसरा हमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक उनका वो कर जाए, समझ में आने लग जाए, वी विल गेट अट्रैक्टेड टू दैट, है ना। इसीलिए भगवान, ही इज द वन, भगवान इनकारनेटेड एज जीसस क्राइस्ट, है ना। भगवान जीसस क्राइस्ट एंड देयर शक्तिवेश अवतार, इवन मोहम्मद इज अ शक्तिवेश अवतार, है ना। क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल दे हैव डिफरेंट वे, उनको सब लोगों को भगवान के पास ले आना है, लेकिन हर एक चीज, हर एक बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो भगवान क्या करते हैं, ही सेंड्स हिज पीपल, और वो एम्पावर करते हैं लोगों को, सो दैट एवरीबडी, भले ही वो किसी भी मेंटेलिटी का हो, है ना, चांडाल की मेंटेलिटी का हो या ब्राह्मण हो, डजेंट मैटर, वो हर एक मेंटेलिटी को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अलग अलग बंदा अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट होता है, इसलिए इतने सारे इनकारनेशन है। ओके ओके, so we'll stop here and ask if there are any questions or comments. We have few minutes. प्रभु जी, इसमें ऐसा भी ऐड कर सकते हैं कि भगवान होते तो सबकी जो जो अपने भक्त होते हैं सबको प्लीज करने के लिए, यानी जैसे आपने बोला ना कि दत्तात्रेय भगवान, हाँ, अपने अपने उनको प्लीज हाँ करने के लिए आए थे। हाँ हाँ, अपने भक्तों को प्लीज करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल कह सकते हैं, 100%। एक्चुअली क्या है, ये भगवान ने उसमें भगवत गीता में क्या बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। कहते हैं कि दो रीजन है उनके आने के, एक तो रीजन है असुरों को मारना, और दूसरा रीजन है अपने डिवोटीज को प्लीज करना, है ना, उनको बचाना और उनको प्लीज करना। एक्चुअली जो हिडन रीजन है, जो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट, बहुत ही पर्सनल रीजन है, वो ये है कि भगवान वांट्स टू एसोसिएट विद हिज डिवोटीज। और हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है इसलिए ही है, भगवान सबसे पहले अकेले ही थे, एंड ही वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब अकेला बंदा अपने आप से क्या रिलेशनशिप बनेगा, है ना। अब आप अमिताभ बच्चन की जैसे मिरर के आगे खड़े होके कितनी बार अपने आप को बैंडेड लगाओगे, कौन सी मूवी थी, आई कांट रिमेम्बर, जिसमें वो मार खा के आता है एंड देन ही वाज पुटिंग बैंडेड, अमर अकबर एंथनी, है ना। सो वी आर नॉट, सो अपने आप से क्या करे भगवान, तो उन्होंने क्या करा, ही क्रिएटेड ऑल ऑफ अस एंड ही गेव अस इंडिपेंडेंस, अपनी खुद की इंडिपेंडेंस, द वे ही इज इंडिपेंडेंट, हम लोगों को भी उसकी छोटी छोटी इंडिपेंडेंस मिली हुई है, एंड दैट इज व्हाई हम लोगों ने उस इंडिपेंडेंस का गलत इस्तेमाल करा, वी आर हियर। सो ही इज डेफिनेटली कम्स टू प्लीज अस, है ना। Definitely his incarnations are there to please us because we are all his sons and daughters and we have to go back, it's just a matter of time. कुछ लोग इसी जन्म में चले जाएंगे, कुछ लोग नेक्स्ट जन्म में, कुछ लोग 1000 सालों में, but everybody is going back. हम लोगों को बस ये देखना है कि हमें कितना और तड़पना है ना, कितनी और मार खानी है, इट्स अप टू अस, वी कैन मेक दैट चॉइस, है ना। इफ और मार खाने की इच्छा है, कोई बात नहीं, यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक, और इफ यू वांट, अगर हो गया है, बहुत हो गया है, तो ठीक है, बस ठीक है, भगवान आई एम सरेंडर्ड, हो गया मेरा जितना भी मेरे को करना था, है ना, जितना डिशुम डिशुम करना था हो गया है, मैं सरेंडर्ड हूँ, प्लीज मेरे को नहीं आना है यहाँ पर दोबारा, लेके चलो मुझे, एंड देन यू फॉलो द गुरु, है ना। Any other questions or comments or realization? Probably question or a doubt I should ask Prabhuji, and I apologize in advance if I'm offending anyone. It was related to 1.3.9 exemplary penances to control our senses. So you know how in childhood I'd seen these Muslims, they do that, they hit themselves. हाँ. Is that related to that? Yes. Somehow, or it is. तो एक्चुअली क्या है, कोई भी तपस्या होती है ना, तपस्या इज ए वॉलंटरी इनकन्वीनियंस टू आवरसेल्व्स। सो क्यों करते हैं हम लोग, मैं आपको उसका बहुत सिंपल सा रीजन है उसका, वो क्यों, और वो सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, मुसलमानों में भी है, उसमें भी है, क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म में भी है, जैनिज्म में भी है, हर एक रिलीजन है ना, उसमें एक चीज जरूर है, वो है पेनेंस, दैट मींस अपना तपस्या जो होती है, जिसमें वॉलंटरी अपने आप को तकलीफ देना। तो उसका रीजन ये है कि श्रील प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि शेर को कैसे कंट्रोल करा जाता है। शेर जो है ना, शेर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, शेर को
आप क्या करो, एक दिन पिंजरे में रखो, उसको खाना देना बंद कर दो। एक दिन, पहले दिन बहुत दौड़ता है, वाह, दूसरे दिन बहुत दौड़ता है, फिर जब उसका खाना नहीं मिलता है ना उसको, तो तीसरे चौथे दिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो, और फिर पांचवे छठे दिन उसमें एनर्जी नहीं रहती है। फिर क्या होता है, धीरे से बिल्कुल उसका ना बिल्कुल शांत हो जाता है, फिर वो दहाड़ ही नहीं पाता, चलता भी बहुत धीरे धीरे। उस वक्त जो सर्कस वाला बंदा होता है, फिर वो पिंजरे में जाता है, फिर उसको हंटर से मार मार के उसको ट्रेन करता है। ठीक है, हमारा जो मन है ना, हमारे शास्त्रों में उसको शेर से कंपेयर करा है। हमारा मन बहुत चिल्लाता है, ये भी चाहिए, मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, तुम्हें पता नहीं मेरे को मीठा कितना पसंद है, तुम्हें पता नहीं मुझे मूवी कितनी पसंद है, अब भी चाहिए, अब भी लाओ, और लाओ, और लाओ। लेकिन क्या होता है, द ओनली वे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो कि इफ यू कैन स्टार्व देम। मन कह रहा है मुझे मीठा खाना है, तो आप बोलो, तूने एक बार और बोला तो 2 दिन नहीं मिलेगा मीठा। फिर उसने वापस मांगा तो अच्छा ठीक है, अब तो 3 दिन नहीं मिलेगा। तो जितनी बार बोलेगा उतने उतने दिन बढ़ते जाएंगे। नारायण को भी ये करते हैं कि इफ यू डू इट नाउ इट्स फाइन, इफ यू डोंट देन यू वोंट गेट इट, है ना। फिर अगर वो बोलता है 10 मिनट और सुना, अगर वो वापस बोलता है ठीक है, नाउ यू ओनली हैव 9 मिनट्स टू प्ले, अगर फिर वापस बोलता है ठीक है, नाउ यू हैव 8 मिनट्स, डू यू वांट टू कीप आर्ग्यूइंग, नो, ओके देन एंजॉय 8 मिनट्स, है ना। तो हमारा मन भी ऐसा ही है। तो जब हम लोग अपने आप को तकलीफ देते हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर टेलिंग आवर माइंड, यू नो व्हाट, यू आर नॉट इन कंट्रोल, आई एम इन कंट्रोल, है ना। सो दैट्स हाउ वी गेट हमारी सेंसेस पे पकड़। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारी इस बॉडी को क्या बोला गया है, हमारी इस बॉडी को एक और चीज बोली गई है, दिस इज गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड, है ना। वी कैन नॉट, वी शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस, इतना हम लोगों को अपनी बॉडी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि हम सेवा ना कर पाए, इसीलिए हम लोग वो सब चीजें नहीं करते हैं ना। बट मुसलमानों में भी यही है, जितना जो आदमी अपने आप को काट सकता है, दैट मीन्स हाउ मच कंट्रोल ही हैज ऑन हिज सेंसेस, है ना। लेकिन ये ऑपोजिट है ना। तो उसमें क्या होता है कि सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे पेनेंसेस होते हैं, ओनली टू कंट्रोल आवर सेंसेस। लेकिन भक्ति में सबसे इजी क्या है, आसान क्या है, कि हम लोगों का जो फास्ट होता है उसमें भी हमारा फीस्ट होता है, ग्रेन नहीं खाना है तो फीस्ट हो गया, लेकिन उस दिन उस समय क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस डिफरेंट होता है ना। सो दैट इज व्हाई वी कैन, अगर हम लोग ऑपुलेंट खा भी रहे हैं, बिकॉज इट्स प्रसादम, इट इज स्टिल प्यूरिफाइंग आवर सेंसेस, तो हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मन को संभालने का, मन को वो करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने मन की बात ना मानो। और उसके लिए ही सारे के सारे धर्मों में अपने आप को इनकन्वीनियंस देने की कोशिश बोला गया है। और सबसे बड़ा इनकन्वीनियंस क्या है हमारे लिए, कई लोगों के लिए होता है कि बोलना, अगर कोई बना कर दे कि चुप रहो तो इट्स द बिगेस्ट इनकन्वीनियंस, है ना। तो जो काफी सारे धर्मों में मौन मौन रखा जाता है ना। और कई लोगों में खाने का होता है, जैसे बुद्धिस्ट होते हैं, वो इतना सिंपल खाना खाते हैं, नमक भी नहीं डालना, चीनी भी नहीं डालना, कोरा खाना, है ना। अगर एक बार कोई बुद्धिस्ट से मिला था मैं, तो उसने कॉर्नफ्लेक्स नहीं सॉरी, ओट्स ओट्स खरीदे, ड्राई ओट्स, और उसमें उसने 2-3 बूंद पानी डाला और ऐसे ही खा रहा था वो। तो हम लोग साथ में बैठे थे, ही वाज पार्ट ऑफ, हमारा एक ग्रुप था, उसका पार्ट था। तो मैंने उसको बोला मेरे पास कुछ बेरीज पड़ी है, तेरे को बेरीज डालनी है, इसमें बेरी है ना, आई हैव गॉट फ्रोजन बेरीज। तो मेरी शक्ल देखने बोला नहीं नहीं आई एम ओके। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर खाने लगे। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने क्यों नहीं डालनी है, बोले यार मेरा मन तो बहुत है, बट आई डोंट वांट टू लिसन टू माय माइंड, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट बेरीज। और जितना मेरा माइंड बोलेगा आई विल टेल हिम नो, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड तपस्या। तपस्या, और उसका सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए। तपस्या का अगर रीजन ये है कि हम लोग किसी दूसरे को दिखा रहे हैं, देन इट्स नॉट तपस्या। तपस्या का रीजन क्या है कि हाउ कैन आई प्यूरिफाई माई सेल्फ बाय कंट्रोलिंग माई सेंसेस, है ना। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई मुस्लिम्स डू दैट, अपने आप को मारते हैं। हाय हुसैन, मैं, हम न थे, हम क्यों नहीं थे, वी शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ हिम, इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन गेटिंग tortured, I should have been getting tortured। so अपने आप को टॉर्चर करते हैं, बट अल्टीमेटली उसका जो एम है वो ये है, so that we can have control on our senses, है ना। that is the only reason, there is no other reason। Does it make sense? प्रभु, बट क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के प्लेजर के लिए कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब अवतरण दिवस है, the highest thing is that, माताजी, that is the highest thing, है ना। तो Okay. जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं, आई डोंट डू इट फॉर प्लेजर ऑफ लॉर्ड एट ऑल, आई डू इट फॉर माय प्रभु प्यूरिफिकेशन। आप ऐसे मत बोलो, तो नहीं मैं तो सीरियसली,
मैं तो बस इसलिए माइंड में ऐसे सोचती हूँ कि उनके लिए फास्टिंग करनी है, हाँ, मुझे उनको खुश करना तो एक्चुअली क्या है, वो किस लिए खुश होते हैं पता है? ही इज नॉट हैप्पी विद आवर फास्टिंग, बट ही इज हैप्पी विद आवर एंडेवर्स, है ना। सो व्हाट ही इज हैप्पी विद इज बिकॉज वी वांट टू बी प्यूरिफाइड, और उनको पता है कि जब तक ये प्यूरिफाइड नहीं होगा मेरे पास नहीं आ पाएगा बेचारा। तो what exactly we should think, प्रभु? What आप exactly बिल्कुल we ठीक should सोच रहे हो, have आप whatever you thinking is perfect, just keep thinking that everything for the pleasure of Lord, because he is Rishikesh. Rishik का क्या मतलब है? Rishik का मतलब इंद्रियां, and he is a India. Rishikesh. So when we are pleasing him, we are purifying our senses already, है ना? Okay, okay. Make sense? Thank you, प्रभु. Yes, sure. Perfect. मुझे डाउट हुआ आपने जब ऐसे बोला ना, क्योंकि हाँ, हाँ. एक्चुअल रीजन तो ये शायद हिडन रीजन ही है कि हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं। हाँ, और और बस एक्चुअली हमारा सारा काम एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए कि हम किस तरीके से भगवान को प्लीज कर सके, है ना। तो हम लोग क्या भगवान को देखने में लगे रहते हैं, भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, भगवान दिख जाए, दर्शन करने में, लेकिन वी शुड डू समथिंग कि भगवान वुड लाइक टू सी अस। अच्छा प्रभु, एक चीज और मुझे थोड़ा सा बस इस चीज को लेके डाउट है। समटाइम व्हेन आई डू फास्टिंग, तो समटाइम आई फील रियली वीक, या फिर मेरे से मुझे लगता है कि नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट पे हमें क्विट कर देना चाहिए, या फिर लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, जैसे समटाइम 2 hours आर लेफ्ट, 3 hours आर, आई एम टॉकिंग अबाउट निर्जला फास्ट, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? शुड वी लिटिल बिट पुश आवरसेल्फ, क्योंकि इज इट अ पार्ट ऑफ ऑस्टेरिटी देन, और इज इट मैं किसी को शो नहीं कर रही होती हूँ, मैं किसी को बता नहीं रही होती हूँ, ना। तो आपका जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन सम, सिर्फ एक ही इसका वो है माता जी। आई मीन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव हर्ड, देयर इज ओनली वन वे टू फाइंड आउट कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपके भूखे रहने से आपकी सेवा में थोड़ी सी भी कमी आ रही है, देन आपको भूखा नहीं रहना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आ रही है, मतलब आप जिस तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हो, या सिर्फ भगवान की नहीं, एक्चुअली हमारे घर पे भी, घर की सेवा, अपने आपके तो 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, आप इफ यू कैन डू इट, इफ अगर आपकी उसमें थोड़ा सा भी कमी नहीं आ रही है, देन यू शुड पुश योरसेल्फ, 100% पुश योरसेल्फ, बट वी शुड बी रियली प्रैक्टिकल, क्योंकि भगवान इज नॉट देयर टू सी कि भाई ये बंदा, भगवान सीज आर भाव, ही इज अ भावग्रही, है ना, ही लुक्स एट आर भाव, हमारे भाव को देखते हैं कि भाई इसका क्या भाव है। और कई बार हमें पता है कि देखो आई एम फीलिंग रियली वीक, है ना, और अभी क्या है, 2 घंटे, सपोज 2 घंटे बचे हैं, लेकिन इस 2 घंटे में इफ आई हैव टू डू समथिंग विच नीड्स माई एनर्जी, एंड रादर देन मैं कि 2 घंटे खींचूं और बेहोश होके गिर जाऊं, उससे अच्छा है इफ आई कैन हैव 2 sips of water, so that I can sustain for 2 hours, fine. That's right, प्रभु। बट ऐसा नहीं है प्रभु कि मैं बार बार आवर काउंट कर रही हूँ या घड़ी देख रही हूँ जितना टाइम बचा है, बट हाँ 1 hour, if there is only 1 hour left or 2 hours, then I thought better I should push myself little हाँ, bit. you can push. I just got engaged in chanting or listening classes. So Make sure like आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आए, and then you can do whatever. I think हमारी body is designed, हमारी body क्या बहुत strong है actually, है ना, इतनी जल्दी हमारी body को कुछ होता नहीं है ना। तो but obviously अगर आप कोई heavy सेवा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जैसे टेम्पल में कई बार जो लोग खाना बनाते हैं ना, उन लोग जो heavy lifting कर रहे होते हैं, उन लोगों को हम लोग साफ साफ बोलते हैं कि प्रभु, rather than hurting yourself, you should go and have some water or juice or something, so that you can continue doing your service with the same energy, same, you know, gusto. Yes, अगर आप ऐसा है तो you can do it, but otherwise, you know, we should definitely push ourselves, you know, हमारी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए बस। Yes, प्रभु, एक्चुअली वो डाउट उसी चीज को लेके था कि वो भी that is actual austerity means, क्योंकि it is austerity, yes, austerity ना कि थोड़ा बहुत तो हमें मतलब inconvenience तो देनी है, हाँ, हाँ, inconvenience तो देनी है, and that is the reason why we do this, क्योंकि this is तपस्या का क्या मतलब होता है, voluntary inconvenience to our body, voluntary inconvenience, yes, right. तो वो तो inconvenience देनी है ना, वरना तो क्या है कि भाई बोले आप व्रत करते हो, बोले हाँ क्या करते हो व्रत, बोले ट्यूसडे और सैटरडे को चिकन में अनियन नहीं डलता, ये मेरी ऑस्टेरिटी है। तो दैट इज नॉट ऑस्टेरिटी, है ना, दैट्स रबिश। चिकन खाना है लेकिन अनियन नहीं डालेंगे, क्यों, बोले आज ट्यूसडे है ना, आज अनियन नहीं खाना है भाई, दैट्स नॉट ऑस्टेरिटी। वॉलेंटरी इनकन्वीनियंस इट शुड बी देयर, बट इट शुड बी इनकन्वीनियंट। जैसे दान के लिए भी कहा जाता है, दान देना, आप अगर आपकी जेब में $100 पड़े हैं और आपके पास 10 सेंट के 4-5 कॉइन पड़े हैं जेब में और खनखन कर रहे हैं, बोले यार इसको कहाँ दूं, बोले सामने भिखारी बैठा उसको दे देता हूँ, एंड यू थिंक दैट ओह माय गुडनेस आई हैव डन अ रियली गुड दान, बट दैट्स नॉट दान, क्योंकि यू डिड नॉट हैव एनी इनकन्वीनियंस, बल्कि आपने क्या करा है, अपनी इनकन्वीनियंस और कम कर दी है,
कि आपके जेब में छन छन हो रहा था, आपने निकाल के दे दिया किसी को. I'm not saying you shouldn't do it. You should do it, but it's not gonna give you any piety. कोई पुण्य नहीं मिलेगा उससे. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पुण्य कब मिलता है? When there is a little bit of pinch. है ना, आपके पास आप if you're earning $20,000-30,000 a month and then you're giving God $100, then it's nothing. पिंच नहीं हो रहा है आपको, that means you're not doing दान. अच्छा It's not. प्रभु, हाँ. प्रभु इसी से फॉलो अप क्वेश्चन भी माइंड में आ रहा है कि माइंड में कई बार मेरे डाउट आता है कि जब जैसे कि हम लोग यूट्यूब या उस पे ब्राउज करते हैं ना, गूगल पे कई बार ऐड आ रहे होते हैं जिसमें दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, सीकिंग सम हेल्प, और दे आर आस्किंग फॉर सम चैरिटी, सम मतलब दे हैव सम सीवियर डिजीज एंड सम क्रिटिकल डिजीज आल्सो, they are about to die and something like that. So some are very, very critical disease. So should we donate in that organization? Like, is that I can't answer that for you, Mataji. I can give you what I will do, but I can't answer this, especially in this forum. I don't want to answer it because because I want people to make their own decisions, especially in these things, है ना. One of the concept we have to remember, principal यहाँ पर क्या है? Principal मदद करने में कोई problem नहीं है, but remember कि there are so many people who are taking advantage of these things right now, है ना. काफी सारे लोग हैं. So we don't know कि वो पैसा कहाँ जा रहा है. ठीक है. दूसरी चीज क्या है कि I personally, if I have to do something, I will, instead of just helping them with money, I will actually get a Narsimha Yagya done for them. Or India में, I pray for them. You can pray for them. You can actually donate to अपना जो है ना नवदीप में नहीं वहां पर मायापुर टेम्पल में देयर इज अ वेबसाइट. वहां पर यू कैन एक्चुअली डोनेट एंड दे विल डू अ नरसिम्हा यज्ञ. नाम दे दो एंड दे विल डू नरसिम्हा यज्ञ. गेट दैट डन. उससे क्या होगा कि दे विल गेट मोर बेनिफिट देन यू गिविंग देम सम मनी. क्योंकि what we are trying to do is we are trying to not only protect this body, we are trying to protect the soul, है ना. So higher purpose देख के करना चाहिए, but at the end of the day, do not take my word for whether you should help them or not. It is your 100% your personal thing, and you should always remember कि God is not gonna punish you अगर आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है. But at the same time you should use your judgment as well कि भाई हम कहाँ देना चाहिए, है ना. So you got to be careful. At least we can pray for them. At least you can definitely pray for them, and we should definitely pray for them. We should definitely pray for all of these people. कभी भी, और जितना आप लोगों के साथ लिए pray करोगे ना माता जी, it's better. Because Prabhu, sometimes you would feel that emotion. You would get emotional because they are in so bad situation, and then I think praying would really got confused sometimes that what should I do, because but there are number of cases, so I don't know what is the right decision, what is the right procedure, what should we fair do enough about. But at least I pray for them. हाँ, definitely you should definitely pray, and you can अगर आप लोग उनको जानते हो किसी को, you should help as well, but at the same time it's up to 100% up to you. शास्त्रों में इसके बारे में जो लिखा है, which I can talk to you in one-on-one, है ना. But otherwise don't let these things hinder you, है ना. Pray तो करना ही है हर किसी के लिए, है ना. और हम लोग जैसे मैंने 1-2 बार करवाया है ये जो नरसिम्हा यज्ञ है ना, it is extremely powerful, है ना. किसी के लिए आपको पता चलता है, rather than बहुत सारे लोग देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं, लेकिन नरसिम्हा यज्ञ कोई नहीं कराएगा उनके लिए, है ना. And they will get eternal benefit out of that, not just one time. बॉडी माइट पेरिश. किसी के लिए चैंटिंग भी करके उसको डोनेट कर सकते हैं. कर सकते हैं, बिल्कुल उसका पूरा फल तो उससे कर सकते हैं, कर सकते हैं. लेकिन शिला प्रभुपाद इस बारे में कभी बोला नहीं, मैंने नहीं सुना उनको बोलते हुए. लेकिन जैसे मेरी मम्मी बताती हैं, वो संकल्प पढ़ के यू कैन डू इट, यू कैन गिव इट टू देम. बट ऑब्वियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड स्पिरिचुअल सॉल्यूशन बाय मटेरियल मींस, है ना. बट that is the only thing. Otherwise you can definitely do it. जैसे मेरी मम्मी ने, भैया की तबीयत खराब थी, she was doing it for him and she was giving him all the thing. You can do it, but otherwise you can, I would recommend कि you should definitely do extra rounds for people, है ना. जैसे कोई बीमार होता है, हमारे ग्रुप में भी सब लोगों ने एक दूसरे के लिए करा है. That is the best सेवा you can do for people,
है ना। और उसके लिए ना आपको वो भी संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट से भगवान आई एम जस्ट डूइंग सम एक्स्ट्रा राउंड फॉर मिथुल प्रभु today. That's it. Okay. Done. Okay. Thank you so much, Prabhu, for making it No clear. छोटा सा No story problem. share करूं related to हाँ, please, chanting. please, for- please, please, I please. was listening to Nitai Sevri Mataji, and she said she was in the flight and she'd done her 16 rounds, and she was inspired to do more, but she couldn't find the energy or the source of energy that you need to continue to do it. So she just looked outside her window when she was flying. She said, "I'll chant the next 6 rounds or 5 rounds for the mountains, the animals living on the mountains that I just passed." And then she was on the ocean. Then she said, "Then I'll chant the next 6 rounds for all the animals that are in the fishes that are in the ocean." So it was such a beautifully explained. I'm not Beautiful. saying it properly, but then she went on and she finished her 32 rounds by the time she landed. Wow, beautiful. Nitai Sevni Mataji is one of the most inspiring, speakers. I still listen to her classes every now and then. I'm currently listening to Mind Your Mind or something like that. The Power of Mind or something. Beautiful class. So thank you for sharing, Pooja Mataji. That's really good. And we should do this. This is the हमारी spiritual elevation के लिए बहुत अच्छा है. और it's good for everyone actually. कहते हैं ना कि कोई ये एक ऐसी चीज है जिसमें you benefit and everybody around you benefits. है ना? Okay. Thank you very much. Srila Prabhupada की जय. सावेत भक्तवृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.